हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ग्लोबल क्लाइमेटिकल चेंज, देयर इज एन इंपॉर्टेंट हियर। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, व्हाट यू मीन टू द हियर अ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज? We have a read under to biogeochemical, a cycle that for the last billion year or so, Earth's atmosphere and the hydrosphere has been to the composed of approximately there is some balance of chemical component in the living with the today. You know that there is an important point here. The Earth's atmosphere and the hydrosphere has been composed of approximately the same balance of chemical components we live with today. The Earth has a unique mechanisms for the stabilizing and controlling the global climate. That is important. The Earth has a unique mechanism for the stabilizing and the controlling the global climate, and this mechanism are flowing. The mechanism is the most important point. Let's see the mechanism here. The first mechanism, the plant and animal balance to the carbon dioxide level of the atmosphere, which is a twin act of global thermostat. There is an important here, plant and animal balance to carbon dioxide level of the atmosphere, which is the twin act of global thermostat. It means these elements control the temperature balance within the optimum limit. There is important. It means these elements is a control the temperature balance within the optimum limits. And the water bodies play the important role in the regulating global climate. The water bodies play the important role in a regulated global climate. In recent year, the rapidly growth of human population, the rate at which we consume the earth as a resource, the extravagant lifestyle, etc., the lead to the subcontinent increasing there is a carbon level of atmosphere which has accelerated the process of climatic change. That is important here. Let us discuss some of the process affecting the climatic change here. The first here, greenhouse effect and global warming. There is an important here, greenhouse effect and global warming. The global warming refers to the gradually rise of the atmospheric temperature and consequent change in the radiation balance, mainly due to human action. There is an important here, change in the radiation balance is mainly due to the human action leading to the climatic change at different levels. The local, regional and global. Local, regional and global here as percent is the estimate it is the has been to form that is the surface air temperature. Over to the past 100 year has been increasing by about 0.5 Celsius to 0.7 Celsius. Do you know why it is happening? And this due to the greenhouse effect. Too has been better understand about the global warming. We shall know that is the functioning of greenhouse in the see the box. There is important here working of greenhouse here. So here is the working of the greenhouse. The important here working of greenhouse. In cold countries, a greenhouse is a mean of plants where a total heat, especially during the winter season, is not sufficient to support a plant growth. The transparent wall and roof of the greenhouse are such that these allow to the visible sunlight to enter but prevent the long wave radiation to go out. Thus, the sunlight is absorbed by the soil and structure of the greenhouse. It is re-emitted as the heat which cannot be passed through the glass. The amount of energy in the greenhouse thus the increasing until it is the temperature is high enough for the slight leakage of heat through the glass to be a take away as such a energy as a get in a sunlight. There is an important here, the slight leakage of the heat through the glass to be take away as much energy as get in a sunlight. Consequently, the wall or roof or emit absorb the radiation into the house, and thus during the day and time infrared radiation pass into the greenhouse and
warm the atmosphere and the ground on which there is a greenhouse stands. The coating of glass with a non-heat radiation film transparent to the sunlight further as a maximize heating effect of the radiation. That is the most important point here. Therefore, if our Earth has become a greenhouse, then there are a antenna of gases which act like the glass panel of greenhouse, allowing the sun as a ray to the pass through the put of preventing the heat from the escaping into the outer space and thereby the warming the atmosphere. This is happening due to the deforestation and industrialization. And these gases are carbon dioxide, CO2, and methane CH4. Nitrous oxide is NX, NOx, and there is a chlorofluorocarbon CFC. And the next now as the greenhouse gases. Out of these four gases, carbon dioxide contribute about 55%. The carbon dioxide contribute about the 55% and chlorofluorocarbon contribute about 24% and methane about 15% and nitrate oxide about 6% to about to the heating of the atmosphere. Do you know that the source of these gases? There is a most important question. Do you know that the source of these gases? So these gases is mainly is here burning of fossil fuel and firewoods. The burning of fossil fuel and firewood, a large fleet of the automobiles and number of factories emit to the carbon dioxide. The growing of paddles, livestock and waste dumps and coal mining are the major source of methane. You know that there is an important point here. The growing of paddies, livestock and waste dumps and the coal mines are the major source of methane. The use of the aerosol as the coolant and refrigerator and air conditioning is a device release of chlorofluorocarbon. The important point here. Aerosol is a coolant and refrigerator and air conditioned device release of chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon is the CFC into the atmosphere. The nitrous oxide is mainly emitted from to the chemical industries and due to the deforestation and contained agriculture practice. Construction of greenhouse in the temperate region help the plant is a protections and the ecologically balanced, whereas the concentration of greenhouse gas on the earth as a atmosphere upset the earth as biological system. The next here consequence of greenhouse effect. There is a consequence of greenhouse effect that is important here. The first point consequence here, it is estimate that if the present rate of increasing of carbon dioxide CO2 the level or continues, it is with the result in the rise of atmospheric temperature by 2 Celsius to 3 Celsius by end of 21st century. There is an important point here. It is similar that if the present rate of increasing in a CO2 level continues, it will be a result in a rise of atmospheric temperature by 2 Celsius to 3 Celsius by end of 21st century. And this will be result in the recedings of many glaciers, melting of ice caps in the polar region and disappearance of deposit of ice on the other part of the world in a large scale. According to the estimate, if all the ice on the earth would be a melt, about a 60 meter of the water would be added to the surface of all ocean and low lying coastal area. A rise in the sea level of only 50 to 100 centimeter caused by the global warming would be flood low linings of area of the world such as Bangladesh, the West Bengal as well as the densely is populated coastal cities from the Shanghai to the San Francisco. There is an important point here. The third point is important, but first of all, a second point here. Because of increasing of concentration of carbon dioxide and due to the much of warmer tropical ocean, there may be occur a more cyclone and hurricanes. Earlier snow melt in the mountain will be case of more flood during the monsoon. According to the United Nations Environmental Programs UNEP, the National Environmental Program here UNEP with
Within about the 3 is a decaded rising level of sea will be able to and flood coastal cities like Mumbai, Boston, Asitagang and the Melina. There is an important point here. The third is important here. A sudden increase in a global temperature can be addresses affect the world food production and thus the beet production zone in the north latitudes will be safety to the north of temperate latitude. And the fourth point is important also. The biological productivity of the ocean would be also decreased due to the warming of the surface layer. The biological productivity of the ocean would be also decreased due to the warming of the surface layer, and which is a term to reduce the transport of nutrients from to deeper layers to the surface by vertical circulation. That is important. An important point is arrive here control and remedials of measuring of greenhouse effect. So here come to the control and remedials measure of greenhouse effect. The following measuring may be adopted to reduce the ever increasing greenhouse effect. You know that the measuring may be adopted to reduce the ever greenhouse as effect here. The first here, carbon dioxide is a concentration can be reduced by the drastic cut in the consumption of the fossil fuel in the highly developed and industrialized countries like USA and Japan and the developing country like China and the India. That is important here. Carbon dioxide concentration can be reduced by drastic cut into the consumptions of fossil fuel in the highly developed and industrialized is a country like USA and Japan and developing country like China and India. The second here, scientific effort should be made to be develop a alternative efficient fuel. The scientific effort should be made to be developed is alternative efficient of fuel. The methane may be a substitute for the petroleum and development of hydroelectric and thermal power are better alternative. The development of hydroelectrics and thermal power are better alternative. That is important here. The third point is also important. There should be a restricted on the emission of the dangerous CO2 and CFC, and there is NO2 from to the factory and automobile. There is an important point here. There is a very dangerous carbon dioxide and chlorofluorocarbon and NO2. There is a NO2 is most important air factories and automobiles here produce. And fourth here, limiting their drives today as a megacities can be another option. Cities like Singapore and the Mexico and flowing their practice. And the fifth point here, in the tropical and subtropical country, the solar energy may be developed as on the alternative to the fossil fuel. There is an important point. Tropical and subtropical country, their solar energy may be developed as the alternative to the fossil fuel. And sixth point is also important here. Biogas plant should be used, which is another source of the conventionally is energy for a domestical use. There is important here. Biogas plant should be used, which is another source of conventionally is energy for a domestical use. Enhancing to the aerations will be contain reduced CO2 level, thereby decreasing the greenhouse effect. That is an important point. The B point here, ozone layer or depletion. There is an important here, ozone layer depletions. Before discussing about the problem of ozone layer is depletions, we should be now about the ozone and the ozone layer. Ozone is a form of oxygen that has a 3 atoms, CO3. Rather than the more common 2 atoms is O2. There is an important here, ozone is a O3 and there is atom is a 2. It is created in the upper atmosphere by the action of the solar radiation on oxygen molecules. As far as it is a position is a concerned, it is found in the form of thin layer in the stratosphere between to the 15 to 48 kilometer. About 90% of the all atmospheric ozone is found in the layer. Ozone constitutes only less than 0.002% of the volume of atmosphere. However, it is a role is a very critical as far as living on the earth as a
concerned. It is strongly absorb ultraviolet radiation for the sun. Ultraviolet radiation is biologically destructive in many ways. There is an important here. The ultraviolet radiation is biologically destructive in many ways. It is a skin cancer and cataract suppresses there is a human immune system. There is important here ultraviolet radiation, the causing of skin cancer and cataract and suppresses there is a human immune system. Damages there is yard to the many crops, disrupt their aquatic food chain by the killing of microorganisms on the ocean surface and many other negative effects which is still is undiscovered. There is an important point here for the exam view. This is happening due to the content of recent human activity which have injected contain a chemical in the stratosphere which consume ozone and the reduce it is a concentration. Depletion is in many cases by the chlorofluorocarbon, yani CFC as a halogens, methyl chlorofluoro and the carbon tetrachloride. And these chemical substances are mainly either as chlorine or bromine which can be react the stratosphere and the catalytically is a break down to the ozone into the oxygen. Chlorofluorocarbon are the odorless and no flammable and no corrosive and the non-toxic. For this reason, is a scientific originally they believed chlorofluorocarbon could not be possible have any effect of the environment. There is an important point here. Note down the chemical substance is mainly either to the chlorine and bromine, which can react to the stratosphere and catalytically break down ozone into the oxygen. And chlorofluorocarbon is a odorless, non-flammable, non-corrosive, and non-toxic. And for these reasons, scientists originally believe chlorofluorocarbon could not be possible as be any effect of the environment. There is a wrong things here, and that is it is a widely used of refrigerator and the air conditioning as a form of plastic manufacturing and the aerosol spray. There is an important point. Chlorofluorocarbon is the most dangerous here, but scientific there is a call to the belief there is not a possible have any effect on the environment in possible here. Not only is the zone layer is a thinkings in the some place, it is a temporarily disappearance. A hole in the layer has devolved over to the Antarctic sign 1979, and that hole has persisted for a long and the longer time every year. In 1988, on a zone is a hole, there is a was the found over to the Antarctic for the first time, and it is a two has lasted long and the longer each year and then there is a important. Can we prevent this disaster? Can we prevent this disaster? It is a need or contain action both at individual as well as the governmental level. Since the last two is a decide, contain or action has been to imitate it at a global level. Among these is the Montreal Protocol of 1987 and London Conference of 1992 are the important. In both this is a conference, it was decided that the devolved country would be totally banned of chlorofluorocarbon production by 2000. And the development country by the 2010 AD, even it is assembly flow to the status is implemented by all the 150 countries, including India, and the who are the signatory to the Montreal Protocol. Even then, to chlorofluorocarbon or chlorine shall be continue their influence of another 100 years. And therefore, all over to the world, research efforts are continuing for the development of the constitutive of the chlorofluorocarbon as a is a coolant for the refrigerator and air conditioner. The next key point is the most important here, acid rain. The acid rain is the most important here. The term acid rain refers to the deposition of the wet or dry acidic material from to the atmosphere on the earth as a surface. Throughout the most microscopy is associated with the rainfall, the pollutant may be fall on the earth as a surface either in the form of snow, shadow of fog in the dry form of the gas or particulate of matter. Sulfuric acid and the nitric acid is considered as the principal agent responsible for the acid rain. The important point here, sulfuric acid and nitric acid is considered as the
principal agent responsible for the acid rain. But the major is a culprit are human beings. There is an important point here. The major culprit are human beings. The smoke emit from to the industry is a major source of sulfur dioxide, whereas smoke emitted from to the motor vehicle in there a major source of nitrogen oxide. There is an important point here. The smoke emitted from to the industry is there a major source of sulfur dioxide, whereas to the smoke emitted from to the motor vehicle is the major source of nitrogen oxide. And this emissions is a mix with atmospheric moisture from to the sulfuric acid and nitric acid, which is a sonars. The latter is a precipitate on the earth is a various form. The important point here. Acidity is the measuring on the pH scale based on the relative concentration of is a hydrogen ion. The scale ranges from to 0 to the 14, where is the lower and represent extremely acidic and the upper index extremely alkaline. To see diagram as I started the earlier, acid and rain is associated with their various form of precipitation. It we look at the rainfall in the clean and dust-free air. A pH value of varied between to the 5.6 to the 6, which is the highly acidic in the nature. 5.6 and 6 there is the slightly acidic of the nature, highly there is a acidic nature here. And wherever there is a where their pH value is below to 5.6, they are dangerous because of noticeable. That is the most important here. Here show the pH scale that increases acidic here. The 0 to the here or 6.9, that is the very acidic, and there is a 7 here a neutral. The 7 here a neutral, the normal range of the stream of pH. Normal is a precipitation of pH. The maximum is a 5 to the 1. The acidic rain is create here, and the main is a batric acid is recorded below pH, and the lemon juice, vinegar, adult fish die, and fish predators affected. There is an important increasing acidic level here, and the 7 is a neutral. The neutral is the most important normal range of pH as a 7. The 7 is a neutral. There is example of water, they are neutral. There are 7.1 to the 14. There is important for the alkaline, the base here. The base here, the baking soda, seawater, milk of magnesium, ammonia, and the lye. There is the most important here base, and show the pH scale diagram here. The long-term effect of the acid precipitation on human health and agriculture production has not yet been observations oppressively. There is, however, the most consequence of dangerous is because done to the aquatic ecosystem. Below the giving are some of the effect of the acid rain. The ecosystem of stream or lake may be severely affected when it is the pH fall below to the 5. Total biomass in such a system is reduced from 2 to 10 times because a few organisms can tolerate to the acid. The diversity of the spice is also decreased. The most severe effect of the acidification on a fish. Acidic is a condition affect the reproductive capability of fish and resulting in a slow decline of the fish production and the fish population. This has been documented in the various parts of the Europe and North America. In Norway, thousands of the lake and stream they have a largely lost their fish population over to area of 33,000 square kilometer. There is an important point here. Serval Lake is a stream in United States, and the Canada has become a biologically distinct during the last quarter century. These species of effect of the acid rain on the forest are not a clear understood evidence, however, to show that it is responsible for the forest is a dieback which is occurring in the each continent. The forest is a dieback is a gray mass world is achieving all death or decline of the forest even to the buildings and the momentum of vegan destroying the because acid deposition as accelerated is a erosion a capacity. The acid rain is a serious global problem, and its impact can be spread over long distance from to the origin of the pollutant.
and that is Scandinavians or countries complain about their British pollution in the Europe, whereas the Canada is a blame United States of Northern America. हमारे समक्ष जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है भूमंडलीय जलवायस्पिक परिवर्तन, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमंडलीय जो है जलवायविक परिवर्तन क्या है और इसके बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भूमंडलीय जो है जलवायविक परिवर्तन में काफ़ी कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है, चाहे वो एसिड रेन हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, तो सारे इसी के अंतर्गत आता है क्योंकि ये जलवायविक परिवर्तन को दर्शाता है। तो आप समझ गए होंगे भूमंडलीय जलवायविक परिवर्तन क्या है। तो इसको जो है विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कारण क्या बनता है। हमने भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत पढ़ा है कि पृथ्वी का वायुमंडल और जलमंडल पिछले वर्षों और उससे भी अधिक समय से लगभग वैसे ही संतुलित रासायनिक घटकों से बना रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वायुमंडल और जलमंडल पिछले 1 अरब वर्षों और उससे भी अधिक समय से लगभग वैसे ही संतुलित रासायनिक घटकों से बना रहा है जैसे हम आज रहते हैं। पृथ्वी के पास वैश्विक जलवायु को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए एक विशेष रचना तंत्र है। यानी देखा जाए तो पृथ्वी के पास वैश्विक जलवायु को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए एक विशेष रचना तंत्र है और ये रचना तंत्र निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो इसी रचना तंत्र के विषय में जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रचना तंत्र है क्या। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रचना तंत्र है जो इसको प्रभावित करती है। यहाँ पर 2 रचना तंत्र जो है काफ़ी प्रभावित करती है, वो है पौधे और पशु। जो है पौधे पशु वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को संतुलित रखते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हमेशा त्रिपाण से जनरेट उठाता है कि पौधे और पशु जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को संतुलित करने में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए ना तो पौधे नष्ट होने चाहिए, ना पशु पक्षी नष्ट होने चाहिए, नहीं तो ये कहते हैं जो हमारा संतुलित पर्यावरण का है वो बिगड़ जाएगा और जब बिगड़ेगा तो आपको पता है कि संभालना इसको इंसानों के बस में नहीं है। जो वैश्विक ताप स्थिरता का कार्य करता है और इसका अर्थ यही हुआ कि ये तत्व जो है तापमान को संतुलन के अनुकूलम सीमा में नियंत्रित कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में जलखंड महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण वाली बात रखता है। हाल के वर्षों में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के उपभोग के लिए पृथ्वी के संसाधनों का तेज़ी से दोहन हुआ है और हमारी अवयव जीवन शैली आदि ने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को अधिक बढ़ा दिया है और इसे जलवायविक परिवर्तन प्रक्रिया को गति प्रदान कर दी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और जैसे हम संसाधनों के जो है तेज़ी से दोहन कर रहे हैं, कई मात्रा में देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को एक गति प्रदान कर दी, जो कि बहुत ही आने वाला समय में खतरनाक होगा और इंसान के लिए जीने का यहाँ पर जो है कंडीशन ही नहीं बन पाएगा। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन प्रभावित करने वाले कुछ जो है प्रक्रिया यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पहला जो है हरित गृह प्रभाव और भूमंडलीय तापन, यानी ग्रीन जो है यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि हरित गृह प्रभाव और भूमंडलीय तापन क्या करता है। देखिए काफ़ी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, जाना भी होगा कि हरित गृह प्रभाव होती क्या है। तो चलिए और भी विस्तार से हम जानने की कोशिश करें कि हरित गृह प्रभाव होता क्या है, इसको जो भूमंडलीय तापन कहते हैं आखिर होता क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग आप सुनते हो वो आखिर होता क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट होती क्या है। कहते हैं भूमंडलीय तापन का अर्थ जो होता है वायुमंडलीय तापन का धीरे धीरे बढ़ना, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से जो है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण जो है संतुलन परिवर्तन होना और इससे विभिन्न स्तर जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जो जलवायु में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इससे विभिन्न स्तरों में जो है स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हाल ही में लगाए गए अनुमान के अनुसार यह पाया गया है कि पिछले 100 वर्षों में धरातलीय वायु का तापमान जो है लगभग 0 सेल्सियस से लेके जो है 0.7 सेल्सियस तक बढ़ गया है, यानी आधे से ऊपर सेल्सियस जो है प्रोग्रेस हुआ है। तो देखा जाए तो आने वाला समय में अगर अधिक बढ़ता है तो ये जनजीवन के लिए बहुत ही खतरा का सबब बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि तापमान धीरे धीरे जो है बढ़ता ही चला जा रहा है और यह हरित गृह प्रभाव के कारण हो रहा है। यानी भूमंडलीय तापन को अच्छी तरह समझने के लिए हमें हरित गृह कार्य पद्धति को जो है समझ लेना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो चलिए इसी बात को समझने की हम कोशिश करें। अब देखिए हमारे समक्ष जो आया है हरित गृह का कार्य। आखिर हरित गृह का कार्य क्या है?
कहते हैं ठंडे देशों में हरित गृह पौधों को उगाने के लिए बनाया जाता है। यानी ठंडे देशों में जो है हरित गृह इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर जो है पौधों को उगाया जा सके। यहाँ पर कुल ऊष्मा जो है विशेषकर सर्दियों में पौधों को उगाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। और हरित गृह की पारदर्शी दीवार और छत ऐसी होती है कि यह सूर्य की रोशनी के अंदर तो आने देती है, परंतु द्वितरंगी विकिरणों जो है बाहर जाने से रोक देती है। यानी इसको जो है कांच का जो है घर ऐसा बनाया जाता है, अंदर तो प्रकाश प्रवेश करती है लेकिन बाहर जो है नहीं जा पाती है। अंततः सूर्य की रोशनी हरित गृह की मृदा और इमारत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और इसे फिर उस ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है जो शीशे में से होकर पार नहीं कर सकता है। हरित गृह में ऊर्जा की मात्रा तब तक बढ़ती जाती है जब तक इसका तापमान इतनी अधिक नहीं हो जाता कि शीशे से होकर इतनी ऊष्मा बाहर चली जाए जितनी जो है ऊर्जा यह सूर्य की रोशनी के रूप में प्राप्त करता है। तदनंतर दीवारों और छत जो अवशोषित विकिरणों के कक्ष में उत्सर्जित करता है। अंततः दिन के दौरान जो है अवरक्त विकिरण हरित गृह में प्रवेश करता है और वायुमंडल तथा उस स्थान को गर्म कर देता है जिस पर हरित गृह खड़ा है। शीशे पर विकिरणों को रोकने के लिए एक पारदर्शी फिल्म चढ़ाई जाती है जिससे विकिरणों का गर्म करने का प्रभाव अधिकतम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हाउस है किस प्रकार कार्य करती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको जो है उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जहाँ पर कम रोशनी प्राप्त होती है और इसमें क्या करते हैं, कांच का घर बनाते हैं और उसके अंदर पेड़ पौधे रख देते हैं। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सूर्य की रोशनी जो होती है उसी कांच में कैद हो जाती है जहाँ पर पेड़ पौधे जो है अपना उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी गई है। तो यही बात यहाँ पर रखता है कि हमारा पृथ्वी भी हरित गृह की तरह ही कार्य अब करने लगा है कि रोशनी के प्रकाश जो है ऊपर से आती है और धरती में ही समा जाते हैं जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियाँ जो है आ जाती है। तो आज पृथ्वी भी हरित गृह की तरह जो है कार्य कर रही है जो कि बहुत काफ़ी जो है आगे चल के विनाशकारक हो सकता है और इंसानों के लिए जीवन संभव यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है जिसको हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए और हर व्यक्ति को जो है इस पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। कहते हैं उनके बाहरी अंतरिक्ष में बाहर निकलने को रोकती है और इससे जो है वायुमंडल गर्म हो जाती है। तो बात तो यहाँ पर साफ है कि वो जो है अंतरिक्ष से बाहर निकलने से रोक देती है। कहते हैं जो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है वो पृथ्वी में ही रह जाती है, ठीक है, और पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती है। तो इसका मतलब है कि जो है हरित गृह की तरह ही कार्य कर रहा है पृथ्वी भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोशनी तो पृथ्वी पर आती है लेकिन पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती है। और कहते हैं आज तो ये भी हुआ है दशा की ऊपर जो ओजोन परत की जो एक परत बनी हुई थी वो भी इंसानों की गतिविधियों के कारण नष्ट हो गई है, जिसके कारण जो है प्रकाश का जो हानिकारक किरणें होती है हम तक सीधे पहुंच रही है और हमारे लिए जीवन के लिए काफ़ी विनाशकारी सिद्ध हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा कारण बनता है यह वनों के विनाश और औद्योगिकरण के कारण हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है वनों का विनाश। त्रिपाण स्टडी सेंटर यही बात हमेशा उठाता है कि वनों का विनाश नहीं करना चाहिए, औद्योगिकरण को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वन ही है तभी हम इंसान हैं। अगर वन नहीं जीवन है तो हम भी इंसान जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि एक दूसरे पर जो है हम डिपेंडेबल है और इस बात को आप भली भांति समझते हो। कहते हैं ये गैस अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक जो यहाँ पर चिंता का विषय बना रखा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने चिंता का विषय दिया हुआ है। इन्हीं को हरित गृह गैस के रूप में जाना जाता है, यानी सारे के सारे जो है हरित गृह गैस के रूप में जानते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो। इन चार गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग जो है 55% मात्रा होती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है 24% होता है और मीथेन लगभग 15% होता है और नाइट्रस जो होता है ऑक्साइड लगभग 6% का योगदान वायुमंडल को गर्म करने में देता है। तो आप समझ सकते हो कि गैस जो है कितना खतरनाक हो सकता है हमारे जीवन के लिए। क्या आप इस गैस के स्रोत जानते हैं कहाँ से है? तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आखिर इनके स्रोत कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, कहते हैं जीवाश्म ईंधन और काष्ठ ईंधन को जलाने से मोटर गाड़ी की लंबी कतारें और बहुत से कारखानों में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जित होती है। ये तो आप भली भांति जानते हो कि जो फॉसिल फ्यूल आप जलाते हो, चाहे आप लकड़ी को जलाते हो, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और सबसे अधिक उत्पन्न होती है तो मोटर गाड़ियों से होती है और कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन अधिक होती है। कहते धान उगाना,
पशुधन, कचरे का ढेर और कोयला खदान मीथेन गैस के प्रमुख स्रोत है। यानी अगर धान अगर उगाते हो आप लोग तो वहाँ पर मीथेन गैस अधिक मात्रा में होता है। पशु के अगर जो है पशु के अगर मल मूत्र को अगर देखोगे तो उसमें भी मीथेन गैस अधिक मात्रा में होता है। और कचरे का ढेर में जो है और कोयला खदान में मीथेन गैस अधिक मात्रा में मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी देख लीजिए हो गए स्रोत और मीथेन का भी स्रोत पता लग चल गया है। अब हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर जो है वाटर कूलर मशीनों में शीतक के रूप में वायुलिप्त का प्रयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। अब देखिए बहुत बड़ी बात आती है कि जो आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो या आप एसी मशीन का उपयोग कर रहे हो वो कई मायने में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को छोड़ता है, जो कि काफ़ी जो है विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। कहते नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य रूप से रासायनिक कारखानों, वन शासन और कुछ कृषि पद्धतियों में उत्सर्जित होता है। तो नाइट्रेट के बारे में भी समझ गए, यानी चारों जो है आपके समक्ष समझ में आ गया होगा कि कौन चीज़ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हरित गृहों के बनने से पौधे की सुरक्षा मिलती है और पारिस्थितिक संतुलन बना भी रहता है, जबकि वायुमंडल में हरित गृह गैसों के संकेंद्रण में पृथ्वी का जैविक तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध यहाँ पर हो सकता है। कहते हैं हरित गृह प्रभाव के परिणाम। आखिर देखा जाए तो हरित गृह प्रभाव जो है प्रभाव के परिणाम क्या हो सकते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आया है कि हरित गृह प्रभाव के क्या परिणाम हो सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ने की वर्तमान दर यही रही तो वायुमंडल में तापमान जो है 21वीं शताब्दी के अंत तक 2 से 3 सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो काफ़ी जो है यहाँ पर दुखदायी परिस्थिति आने वाली है, जो शायद इंसान इससे दूर सोच रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सी जो है हिमनियाँ जो यह हिम है वो पिछले खिसक जाएगी और जो है ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फीली जो है चोटियाँ पिघल जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पर जो है विश्व के अन्य भागों में बर्फ़ के भंडार गायब हो जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार जो है अगर पृथ्वी के सारी बर्फ़ पिघल जाए तो सभी महासागरों के सतह पर और निचले तटीय क्षेत्रों में लगभग 60 मीटर पानी बढ़ जाएगा। भूमंडलीय तापन द्वारा समुद्री जल सतह में केवल 50 से 100 सेंटीमीटर की वृद्धि विश्व के निचले क्षेत्रों जैसे बांग्लादेश हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, तथा बसे हुए तटीय क्षेत्र जैसे संघाई आदि क्षेत्रों में ये बढ़ जाएगी और काफ़ी विनाश लीला भी कर सकती है। तो इससे जो है इंसानों को जो है समझना चाहिए और इस पर जो है बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कहते हैं आज के समय एक ऐसा आ गया है जहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसी तरह के जो है अटपटा काम करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो आज कहते हैं पढ़े लिखे लोग ही जो है सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं पर्यावरण के, जो कि काफ़ी जो है दुखदायी परिस्थिति है। कहते हैं ये लोग ऐसे फैसले नहीं लेते हैं जो जग कल्याण के लिए हो, देश कल्याण के लिए हो, सिर्फ स्वार्थवश जो है वो अपना ही फैसला लेते हैं, अपने व्यक्तिगत जो है विचारों को रखते हैं, जो कि सही नहीं है और ये गलत है हर एक जो है बड़े बड़े विभागों के व्यक्तियों के लिए जो निजी फैसला लेते हैं। कहते हैं कभी भी जो है देश कल्याण के लिए निजी फैसला नहीं रखना चाहिए, हमेशा जग कल्याण के लिए फैसला लेना चाहिए, जिससे हमारा वातावरण हमारा देश जो है सुरक्षित रह सके। दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए सकेंद्रिक और उष्णकटिबंधीय महासागरों के अधिक गर्म होने के कारण अधिक संख्या में चक्रवात और हरिकेन आएंगे और पर्वतों में बर्फ़ जल्दी पिघलने से मानसून के समय अधिक बढ़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार बढ़ती हुई जो समुद्री जल स्तर लगभग 3 दशकों के तटीय शहरों जैसे मुंबई, वेस्टर्न, चिटगांव और जर्नलिम में जलमग्न कर देगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है ये संभव है और इसमें कोई जो है साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि आने वाला समय में हो सकता है कि ये सारे क्षेत्र जो हों जलमग्न हो जाए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा आज के समय बना है वैसा होना स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि भूमंडलीय तापन में जरा सी भी वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल असर डालेगी। अंततः उत्तरी गोलार्ध में गेहूं उत्पादन क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय उत्तरों में जो है खिसक जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं समय के साथ सब कुछ में बदलाव होना स्वाभाविक बात रहेगी और देश के लिए जो है पूरे विश्व के लिए खतरे का सबब बन सकता है। चौथी बात यही आती है कि समुद्र के ऊपरी जल स्तर के जो है गर्म होने के महासागरों के जैविक उत्पादकता भी कम हो जाएगी। तो जनरल सी बात है कि इसका जैविक उत्पादक पे भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। उधर चक्रण
द्वारा समुद्र के निचले भागों में समुद्र की सतह की ओर पोषक का परिवहन भी कम हो जाएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है और ये होना स्वाभाविक है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है हरित गृह प्रभाव नियंत्रण एवं उपचारी उपाय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव के लगातार बढ़ते जाने के निम्नलिखित उपायों द्वारा जो है कम किया जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला उपाय तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड के संकेंद्रण के अत्यंत विकसित और औद्योगिक देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और विकासशील देश जैसे चीन और भारत द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग में जोरदार कटौती करके कम किया जा सकता है। तो ये जनरल सी बात है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राओं में कम ना करेंगे तो ये जो है काफ़ी विनाशकारी हो सकता है। तो उपचार के रूप में यही चीज़ वो जो है महत्वपूर्ण है। दूसरी बात तो यही आती है कि वैकल्पिक सफल ईंधनों का जो है विकास करने के लिए वैज्ञानिक उपाय किए जाने चाहिए। मीथेन पेट्रोल का विकल्प हो सकती है। जल विद्युत ऊर्जा का विकास एक अच्छा विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। कारखानों और मोटर गाड़ियों से जो है खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और NO2 जो है उत्पादन को रोकना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मोटर गाड़ी और कारखानों से ही उत्पन्न होती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी। महानगरों में मोटर गाड़ियों चलाने के दिनों को जो है सीमित करना भी एक अन्य विकल्प हो सकता है। सिंगापुर और मॉस्को शहर इस प्रथा को अपना रहे हैं, क्योंकि वो देश काफ़ी समझदार है और समझदारी का यहाँ पर जो है वो प्रचालक भी है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय देशों में जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में और सौर ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। यानी उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय देशों में जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में और सौर ऊर्जा का विकास किया जा सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बायोगैस संयंत्र लगाने चाहिए, जो कि घरेलू उपयोग के लिए एक पारंपरिक ऊर्जा का साधन हो सकता है। तो बायोगैस संयंत्र बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको लगाना काफ़ी अक्लमंदी का कार्य होता है। कहते हैं वन रोपण में वृद्धि करके कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, जिससे अत्यंत हरित गृह प्रभाव कम होगा। देखिए यहाँ पर वन रोपण की वृद्धि करने की बात की जा रही है, लेकिन कहते हैं बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े लोग हैं, कहते हैं वनों का विनाश ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वन कुछ है ही नहीं। तो इसमें सरकार को सख्ती से कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार भी कहते हैं नहीं समझती है, नहीं जानती है, और वनों का जो है विनाश कहते हैं दिन प्रतिदिन होता ही चला जा रहा है, जिससे आने वाला समय में जो है हर एक जीव जंतु के लिए जो है विनाश का सबब बन सकता है। उसके पश्चात है ओजोन परत का अवक्षय। देखिए ओजोन परत का अवक्षय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ओजोन परत का नष्ट होना कहते हैं बहुत ही जो है संकट का समय आ जाएगा। तो ओजोन परत मैंने पहले ही बताया था कि लोगों के गतिविधियों के कारण जो है ओजोन परत में छेद होता चला जा रहा है, और कई क्षेत्र में तो छेद भी हो गया, जिसकी वजह से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें जो है पृथ्वी पर जो है आसानी से पहुंच जा रही है। तो ओजोन परत का अवक्षय होना बहुत ही खतरे का सबब है। कहते हैं ओजोन परत अवक्षय की समस्या पर चर्चा करने से पहले हमको ओजोन और ओजोन परत के विषय में जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ओजोन ऑक्सीजन का एक प्रकार है जिसमें अधिक प्रचलित 2 अणु यानी CO2 की अपेक्षा इसमें 3 अणु होते हैं। यानी ऑक्सीजन में 2 अणु होते हैं, O2 होते हैं, जबकि ओजोन में O3 होता है। और यह ऑक्सीजन अणुओं द्वारा सौर ऊर्जा के प्रभाव द्वारा वायुमंडल के ऊपरी भाग में बनती है। और ये कहाँ बनती है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में बनती है। जहाँ तक इसकी स्थिति का संबंध है, यह एक पतली परत के रूप में 15 से जो है 48 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे ये कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है 15 से 48 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कुल वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 90% भाग इसी परत में पाया जाता है। यानी 90% भाग इसी परत में पाया जाता है। वायुमंडल के कुल आयतन के जो है 0.002% से भी कम भाग पर ओजोन पाई जाती है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पॉइंट की देखिए मात्रा तो बहुत ही कम है, परंतु जहाँ तक पृथ्वी पर जीवन का प्रश्न है, इसका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, और पराबैंगनी विकिरणों कई तरह से जीवों का विनाशक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है ओजोन कितना महत्वपूर्ण है। सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषण करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर मान लीजिए धरती पर यह प्रवेश करती है तो इससे जो है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और फसलों की हानि होती है, जो कि बहुत काफ़ी विनाश का कारण बन सकती है। तो इसीलिए ओजोन परत जो है इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर रखा गया है। महासागरीय सतह पर जो है सूक्ष्म जीवों को मारकर ये जलीय खाद्य श्रृंखला को बाधित कर देती है, और इसके बहुत से अन्य नकारात्मक प्रभाव है जो अभी तक
अज्ञात है। यानी देखा जाए तो पर्यावरण विज्ञानों को बहुत से नुकसान है जिसके बारे में अभी तक इंसान अनभिज्ञ नहीं हुए हैं। इंसानों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये हमारे लिए जो है एक कहते हैं एक डेंजरस हो सकती है। ओजोन अपक्षय हाल ही में किए गए कुछ मानवीय क्रियाकलापों के कारण हो रहा है। कुछ रसायन समताप मंडल पहुँच कर ओजोन को जो है सेकेंडरी कम कर देते हैं। अपक्षय का मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैनस, मिथाइल और क्लोरोफ्लोरो और कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण इसमें बनता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप अपने घरों में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC सब लगा रखे होंगे, इवन की गाड़ी में भी होता है। और आपको पता नहीं है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत विनाशकारी है। हमें कुछ समय के लिए ठंडक तो दे देती है, लेकिन ये जो है हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए जो है काफ़ी डेंजरस है। आपके पास रेफ्रिजरेटर होगा, उसमें जो गैस भरी जाती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही भरी जाती है। ठीक है, आप AC यूज़ करते हो, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही यूज़ किया जाता है। तो समझ जाइए कि आप विनाश के कगार पे पहुँचे हुए हो। कहते हैं ना, जहर तो आप लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ है, तो बाहर से आपको जहर कहाँ से मिलेगी। तो इतने इतने नुकसान आपको पता है, फिर भी आप लोग ठंडक के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, जो आने वाला समय में ये इसका जो है दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये रासायनिक पदार्थ मुख्य रूप से या तो क्लोरीन और ब्रोमाइन और समताप मंडल तक पहुँच सकते हैं और ओजोन को जो है उत्प्रेरक तरह से विखंडित करके ऑक्सीजन में बदल देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गंध रहित, ज्वलनशील और विष रहित है। शुरू में वैज्ञानिक ने सोचा कि CFC का पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसी कारणवश इसका प्रयोग शीतोष्ण जो है वातानुकूलन, फोम और जो है प्लास्टिक के निर्माण करने में बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। अब देखिए, सिर्फ गलत सोच की वजह से जो है इसका उपयोग जो है धड़ल्ले से किया गया। विज्ञानी के पहले सोच थी कि शायद इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन बाद में जो है इसका प्रभाव पता चला। इसी तरह से कोरोना वायरस भी था जिसपे सरकार ने जो है सबको टीका लगवाया है। अब देखिए, इसका प्रभाव अभी तक किसी को भी नॉलेज नहीं है कि आने वाला समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आने वाला समय में देखना इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है इंसानों के ऊपर, जिसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं यहाँ पर देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब स्टार्टिंग में आई तो सर कहते हैं कि वैज्ञानिक ने सोचा नहीं था कि इसका प्रभाव इतना अधिक पड़ेगा, लेकिन ऐसा पड़ा। तो ऐसे ही सब चीज़ों का होता है, कोई चीज़ को आप जल्दी से निर्धारित नहीं कर सकते कि इसका प्रभाव होगा कि नहीं होगा। कहते समय जैसे जैसे आता है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ओजोन परत केवल पतली ही नहीं हो रही है, बल्कि कुछ स्थानों पर तो अस्थायी रूप से ये गायब भी हो गई है। 1979 की इस परत में अंटार्कटिका के ऊपर एक छिद्र विकसित हो गया है और प्रत्येक वर्ष यह अधिक से अधिक समय तक बनता जा रहा है। कहते हैं सन 1988 के पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन परत में एक छिद्र पाया गया तथा यह भी तब से प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक समय तक बनता ही जा रहा है। तो अंटार्कटिका देखा जाए तो अंटार्कटिका में जो है ओजोन परत का नष्ट होना कहते हैं घंटी बज गई है इंसानों के जीवन के ऊपर। अगर इंसान ने अभी भी नहीं सोचा, नहीं जाना, तो आने वाला समय में जो है इसका विनाश लीला देखने को साफ मिल सकता है। क्या हम इस घोर विपत्ति को रोक सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर है कि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की समस्या है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? कहते हैं इंसान में सब सक्षमता है, लेकिन इंसान जो है आंख बंद किया हुआ है। तो इस विपत्ति को रोका भी जा सकता है, नहीं भी रोका जा सकता है। कहते हैं इंसान के विवेक पे ये आश्रित है। अगर अभी भी समझ गया कि ये चीज़ें हमारे लिए कितना जो है नुकसानदायक है, तो रोका जा सकता है। अगर इंसान ने इस बात को नज़रअंदाज किया तो शायद इसको संभवतः रोकना संभव नहीं है। और इसके लिए जो व्यक्तिगत और सरकारी स्तर पर हमें कुछ कार्य करने होंगे। कहते हैं व्यक्तिगत तो हम जो करना है हम करेंगे, सरकारी स्तर पर भी करने की ज़रूरत है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक स्तर पर कुछ कार्यों को जो है शुरुआत की गई थी। इसमें जो है 1987 तथा मेट्रोला प्रोटोकॉल और 1992 में लंदन के कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण थे। इन दोनों के जो है गोटियों में यह निर्णय लिया गया था कि सन 2000 तक जो है विकसित देशों में CFC का उत्पादन बिल्कुल बंद कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि जब 2000 में ये बात किया गया कि CFC की उत्पादन हम बंद कर देंगे, क्या लोगों ने AC चलाना बंद कर दिया, रेफ्रिजरेटर चलाना बंद कर दिया, क्या ठंडे होने वाला हर एक चीज़ बंद कर दिया? संभव ही नहीं हुआ। कहते हैं दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। तो कहाँ पर कहते हैं जो रूल रेगुलेशन सरकार की तरफ से बनाया गया, प्रोटोकॉल बनाया गया, कहते हैं विश्व स्तर पर बनाया गया, लेकिन इस पर कोई भी अमल नहीं हुआ। कहते हैं ऐसा ही होता है, सरकार ने हर चीज़ पे बैन लगा रखी है, लेकिन धड़ल्ले से उपयोग होता है।
तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है, बहुत ही विवेकहीनता है इसमें। कहते हैं विकसित देश का उत्पादन सन 2010 तक बंद कर देंगे। विकसित देशों ने यही बात बताया था कि 2010 तक हम बंद कर देंगे अगर इस निर्णय का जो है मेडिकल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले भारत सहित 150 देश ईमानदारी से पालन किया जाए और इसे कठोरता से लागू किया जाए। देखिए भारत भी इसमें 150 देश में सम्मिलित था, लेकिन क्या एसी कूलर बंद हुआ भारत में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की संख्या कम की गई? संभवतः ही नहीं था, क्योंकि जो चीज़ के इंसान की आदत लग जाते हैं वो कहाँ छूटने वाले हैं। कहते हैं लोग तो सर भी जाए गल भी जाए फिर भी उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको एक आदी हो गए हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो है एक मजाक की हो गई कि प्रोटोकॉल पर इंडिया सहित 150 देशों ने ईमानदारी से पालन करने और कठोरता लागू करने की बात की गई। तब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो है क्लोरीन का प्रभाव अगले 100 वर्षों तक बढ़ता ही रहेगा। यानी देखा जाए तो 100 वर्षों तक बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए पूरे विश्व में रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर के प्रति प्रतिशत रूप में प्रयोग किए जाने वाले CFC के विकल्प ढूंढने में वैज्ञानिक शोध कार्य में लगे हुए हैं। तो कहते हैं जब तक जो है साइंटिस्ट यहाँ पर शोध करेंगे, जब तक खोजेंगे नया विकल्प, तब तक जो है CFC अपना कार्य कर चुका होगा और इंसान जो है कहते हैं अपनी शुरुआती विनाश में अग्रसर हो जाएगा। तो बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति यहाँ पर आने वाली है आने वाला समय में। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। देखिए अम्लीय वर्षा शब्द का अर्थ होता है वायुमंडल के तल या सूखे अम्लीय पदार्थों का पृथ्वी के धरातल पर निक्षेप होना। अम्लीय वर्षा, इसके बारे में आप पहले भी जान चुके हो, जानते भी हो। हालांकि यह साफ तौर पर वर्षा से संबंधित है, परंतु प्रदूषण कण पृथ्वी के धरातल पर या तो हिम वृद्ध और ओले के रूप में गिर सकते हैं अथवा कोहरा या गैसों के सूक्ष्म रूप में पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते भी हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को माना जाता है। यानी अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को माना जाता है, परंतु इसके लिए मुख्य रूप से मनुष्य सबसे बड़ा दोषी है। यानी कल्प्रिट जो है सबसे बड़ा मनुष्य है। कहते मनुष्य जब तक इन बातों को समझेगा नहीं, इन चीज़ों से छुटकारा पाना संभवतः ही नहीं है। कारखानों और द्वारा जो है उत्सर्जित धुआं सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत के रूप में है, जबकि मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। और ये उत्सर्जित गैस वायुमंडलीय आर्द्रता के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो देर सवेर विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर पाई जाती है, जो कि बहुत काफ़ी यहाँ पर नुकसानदायक है। और इसमें देखा जाए तो मनुष्य ही सबसे बड़ा दोषी है। यदि हम देखें डायग्राम पीएच स्केल की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात को दर्शाया गया है कि देखिए अगर देखा जाए तो 6.9 से नीचे यानी 0 से 6.9 के नीचे जितने भी होते हैं वो अम्लता को वृद्धि को दर्शाते हैं, ठीक है। और 7 जो होता है उदासीन होता है, और 7 आपको पता है कि मैक्सिमम वाटर का ही रहता है जो उदासीन फॉर्म में रहता है। अगर बैटरी की हम अम्लता की बात करें पीएच स्केल की, तो ये 1 रहता है। नींबू का रस की बात करें तो 2 रहता है, सिरका जो है 3 रहता है। उसके बाद वयस्क मछली की मृत्यु अगर होती है तो ये 3 और 4 के अंतर्गत हो सकती है। मत्स्य जनन का प्रभाव जो अधिक पड़ता है वो 4 से 5 एसिडिक पे पड़ता है, अम्लता पे पड़ता है। तो वर्षा सामान्य दर जो अगर वर्षा की हम बात करें तो 5 से लेके ये 6.5 के आसपास हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आया है, क्योंकि ये भी अम्लता जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को दर्शाता है। लेकिन अगर हम बात करें उदासीन की, यानी देखिए उदासीन जो है 7 है, और उसके बाद हम बात करते हैं बेस के यानी क्षारकता का। तो क्षार जो होती है आपको पता है कि 7 से ऊपर वाला जो है 14 तक जो होती है वो क्षारक में आता है। यानी क्षार जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसे बेस कहते हैं, ठीक है। खाने का सोडा, समुद्री जल, ये जो होती है क्षार में आते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, अमोनिया और लाइ, ये सारे के सारे जो होते हैं क्षारकता की वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है ये पीएच स्केल डायग्राम दिखाया है, जो कि काफ़ी महत्वता को दर्शा रहा है। हमने पीएच स्केल में देखा और जाना कि इसमें जो है क्षारक, एसिड, बेस किस रूप में यहाँ पर विद्यमान होती है, उदासीन क्या होती है, क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है। देखिए पीएच स्केल बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये आपने अध्ययन जो किया है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर अम्लता को एक पीएच मापक में मापा गया जो हाइड्रोजन आयनों के अपेक्षित संकेंद्री पर आधारित था, और ये मापक आपने देखा भी है कि 0 से 14 में बांटा गया था, ठीक है। इसलिए हमने पहले डायग्राम को आपको प्रदर्शित कर दिया कि इसमें 0 से 14 के रूप में बांटा गया था, और इसका निचला भाग अधिक अम्लीयत्व को दर्शाता था, ठीक है। अम्लीय जो था 0 से
आपको पता है कि 7 से नीचे नीचे जो है सब कुछ अम्लता को दर्शा रहा था, ये चित्र में भी हमने देखा। और ऊपर का भाग अधिक क्षारीय को भी दर्शाता है। जैसा पहले ही बताया गया है कि अम्लीय वर्षा के बहुत से प्रकारों से संबंधित होता है। अगर हम स्वच्छ और धूल रहित वायु में वर्षा को देखें तो इसका मान जो होगा 5.6 से 6 के बीच में होगा, जो कि काफ़ी अम्लीय को दर्शाएगा। यानी ये अम्लीयत को दर्शाता है। जब कभी भी यहाँ कहीं भी पीएच का मान 5 से नीचे होगी तो इससे होने वाले नुकसान देखने लायक होगा और काफ़ी जो है विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि पीएच स्केल में हमने भली भांति जानने की कोशिश किया। अम्लीय वर्षण के मानवीय स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन में पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों का अभी अच्छी तरह से आकलन नहीं किया गया है, परंतु इससे सबसे अधिक सुस्पष्ट नुकसान जलीय पारितंत्र को हो रहा है। यानी जलीय जीवों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आपने कभी कभी सुना भी होगा कि एक नदी में जो है सारे के सारे मछलियाँ मरी हुई नजर आई। तो आखिर कारण क्या था? कारण था जल का एसिडिक हो जाना। तो ये तो स्वाभाविक बात है। एक नदी या झील का पानी इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और इसका पीएच मान जो होता है 5 से नीचे चला जाता है। तो ऐसे तंत्र में कुल जो है जीव समूह 2 से 10 गुना कम हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, क्योंकि बहुत कम जीव अम्ल को सहन कर सकते हैं। जैव विविधता भी कम हो जाती है और अम्लता का सबसे अधिक असर मछलियों पर ही होता है। अम्लीय पारितंत्र मछलियों की प्रजनन क्षमता को भी काफ़ी हद तक कम कर देती है। तो ये आप समझ सकते हो कि पीएच का जो है एसिडिक का कितना नुकसान होता है। कहते हैं कुछ मछलियां तो उसको सह भी नहीं पाती और मर जाती है, और कई मछलियों पर जो है इसका प्रजनन क्षमता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यानी प्रजनन करने की सक्षमता को ही ये खो देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही है और यूरोप, उत्तरी अमेरिका के बहुत से हिस्सों में प्रमाणित भी हो चुका है। नावे के कहते 33,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों झीलों और सरिताओं में मछली समाप्त हो गई है। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर आ जाता है। अगर इंसान इससे भी न समझे तो काफ़ी जो है आगे चल के दुखदायक परिस्थिति आने वाला है। कहते नावे को देखो, कहते 33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हजारों झीलों हैं और सरिताओं में मछलियाँ समाप्त हो गई है। अब समझ सकते हो कि मछलियाँ वहाँ समाप्त हो सकती है, तो क्या यहाँ पर इसका असर नहीं देखने को मिलेगा? पिछली चौथाई शताब्दी में जो है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सैकड़ों झीलों जैविक मरुस्थल बन गए हैं। देखिए जो झील होते थे वो जैविक मरुस्थल बन गए हैं। अम्लीय वर्षा के वनों पर सही प्रभाव अभी तक जो अच्छी तरह से नहीं समझा जा सका है, परंतु कुछ प्रमाण यह दर्शाते हैं कि यह वनों को मुरझाने का प्रमुख कारण अम्लीय वर्षा ही होती है। और अम्लीय वर्षा क्यों होती है? फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण, इंसानों के मोटर गाड़ियों के कारण होते हैं उत्पन्न, और यह प्रत्येक महाद्वीपों में हो रहा है। वनों का मुरझाना हाइब्रेक एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है वनों का मृत हो जाना, कम हो जाना। यहाँ तक कि भवन और स्मारक भी नष्ट हो रहे हैं क्योंकि अम्ल का इस पर जमाव जो है आपर्दन प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत में ताजमहल को जो है पीला पड़ना। देखिए पीला पड़ने का कारण है अम्लीय वर्षा। कहते हैं संगमरमर जो है जल्दी ही अम्लीय वर्षा के कारण खराब हो जाता है, और इससे अच्छा एग्जाम्पल आपके समक्ष कुछ हो भी नहीं सकता। अम्लीय वर्षा एक खतरनाक जो है वैश्विक समस्या है और इसका असर प्रदूषण पैदा होने के स्थान से बहुत दूर तक फैल सकता है। इसलिए स्कैंडिनेवियन के देशों ने यूरोप में ब्रिटिश प्रदूषण के खिलाफ आपत्ति भी की थी और कनाडा के उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी माना था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट था, महत्वपूर्ण चैप्टर था जो कि ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ये चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना, समझने वाली बात जाना। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हो तो इस पर अमल कीजिए और सही रूप से जो है अपना जीवन यापन कीजिए, जो ज़रूरी है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इस बात को ज्ञान प्राप्त कर सके, समझ सके, जान सके। ठीक है, इसमें इग्नोर करने की वाली बात नहीं है। करना है आपने इतना सा काम, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस में कुछ समय के लिए लगा देना है। जो बच्चों को देखना होगा देखेंगे, जिसको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। कहते हैं ज्ञान को बांटा जा सकता है, ज़बरदस्ती जो है दिया नहीं जा सकता है। तो आपने अपना कर्तव्य किया, मैंने अपना कर्तव्य कर लिया, जिसने जो कर्तव्य था निभा लिया। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 8 से लेके आपको MA तक के हर एक सिलेबस का जो है वीडियो मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।